মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ মহাত্মা গান্ধী প্ৰসংগ কেন্দ্ৰ কৰি উত্তাল হৈ পৰিছে দেশৰ ৰাজনীতি। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মহাত্মা গান্ধী সন্দৰ্ভত কেতবোৰ মন্তব্য কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ এটা বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছিল যে মাৰ্টিন লুথাৰ কিং নেলসন মেণ্ডেলাক যি ধৰণে সমগ্ৰ বিশ্বই চিনি পাইছিল ঠিক তেনে ধৰণে মহাত্মা গান্ধীক কিন্তু কোনেও চিনি পোৱা নাছিল। যেতিয়া মহাত্মা গান্ধীৰ ওপৰত সিনেমা নিৰ্মাণ কৰা হল তাৰ পিছতে বিশ্বই গম পাইছে যে মহাত্মা গান্ধী কোন হয়, মহাত্মা গান্ধী কি কৰিছিল, হে সকলোবোৰ গম পাইছিল সিনেমাৰ জৰিয়তেহে। মহাত্মা গান্ধীক সিনেমা নিৰ্মাণ নকৰা পৰ্যন্ত কোনেও চিনি পোৱা নাছিল। এনে ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু ইয়াৰ পাছতে দেশজুৰি ককৰ্থনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। বিশেষকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলোৱে একেমুখে গৰিহণা দিছে, ধিক্কাৰ দিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক। সমান্তৰালকৈ এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক উভতি ধৰিছে কংগ্ৰেছেও। কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হয়তো মহাত্মা গান্ধীক চিনি নাপাব পাৰে, কাৰণ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেৱল মাত্ৰ নাথুৰামকহে চিনি পায়। এই মুহূৰ্তত এই খবৰ লৈ আহিছে নিটক্সৰ দৰ্শকৰ বাবে। জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক অপমান দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ এটা সাক্ষাৎকাৰত মহাত্মা গান্ধী সন্দৰ্ভত কেইবাটাও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদী। মহাত্মা গান্ধীক লৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৰাজনীতি, মহাত্মা গান্ধীক লৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাজনীতি কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিৰোধীয়ে। মহাত্মা গান্ধীক তেতিয়ালৈকে কোনেও নাজানিছিল, চিনি পোৱা নাছিল যেতিয়ালৈকে তেওঁৰ ওপৰত সিনেমা নিৰ্মাণ হোৱা নাছিল। এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। নেলসন মেণ্ডেলাক গোটেই বিশ্বই চিনি পাইছিল, কিন্তু মহাত্মা গান্ধীক চিনি পোৱা নাছিল। সিনেমা বনোৱাৰ পিছতহে গম পাইছিল মহাত্মা গান্ধীৰ কথা, যে মহাত্মা গান্ধী কোন হয়। সেয়া সিনেমা বনোৱাৰ পিছতহে গম পাইছিল বিশ্বই। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে এতিয়া ঘেৰি ধৰিছে কংগ্ৰেছৰ লগতে দেশৰ জনতায়ো। সকলোৱে একেমুখে ধিক্কাৰ দিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই মন্তব্য। দেশজুৰি ককৰ্থনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। টুইটাৰতো ট্ৰেণ্ডত চলিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী। কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্য, মোদীয়ে কেৱল মাত্ৰ নাথুৰামকে চিনি পায় আৰু নাথুৰামক চিনি পোৱা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মহাত্মা গান্ধীক কেতিয়াও চিনি নাপায়। এনেধৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদীক কটাক্ষ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী। এই মুহূৰ্তত দুটাকৈ মন্তব্য আমাৰ লগত আছে। প্ৰথমটো মন্তব্য হৈছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত কি কৈছিল মহাত্মা গান্ধী সন্দৰ্ভত সেয়া শুনাম। ইয়াৰ পাছত নৰেন্দ্ৰ মোদীক উভতি ধৰি কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে কি কৈছে সেয়াও এনিটক্সৰ দৰ্শকক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। शाखाओं में जिनकी वर्ल्ड व्यू बनती है वो गांधी जी को नहीं समझते, वो गोडसे को समझते हैं, गोडसे के रास्ते को अपनाते हैं। गांधी जी पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब लोग गांधी से इंस्पायर हुए। हिंदुस्तान में शाखाओं में जिनकी वर्ल्ड व्यू बनती है वो गांधी जी को नहीं समझ सकते, वो गोडसे को समझते हैं, गोडसे के रास्ते को अपनाते हैं। गांधी जी पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब लोग गांधी से इंस्पायर हुए। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग गांधी का रास्ता अपनाते हैं, अहिंसा और सत्य के रास्ते पे चलते हैं। लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में है, हिंसा और अहिंसा के बीच में है। हिंसा के लोग, असत्य के लोग ना अहिंसा को समझ सकते हैं। पूरे विपक्ष के जो सबसे उम्दा स्टार कैंपेनर हैं श्री नरेंद्र मोदी, आज उन्होंने फिर एक इंटरव्यू दिया कि अगर गांधी पर फिल्म नहीं बनती तो विश्व ने नहीं जाना। ये वो गांधी है जो उनके मुंह से एक पंक्ति निकलती थी, वो पूरे विश्व की अखबारों की सुर्खी हमारे सामने है। ये नियति है कि उसके भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक सब कुछ आपके हाथों से संपन्न हुआ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस मौके पर जो विपक्ष ने एक दूरी बनाई, क्या आपको लगता है कि ये देश भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार को लेकर इस देश के विपक्ष की जो समझ सामने निकल कर आई है, इस चुनाव में उसका आकलन करेगा? एक है कि इन्होंने
राजनीति के शॉर्टकट ढूंढे हैं और इसलिए वो वोट बैंक की राजनीति में फंस गए और वोट बैंक की राजनीति में फंसने के कारण वे लोग घोर सांप्रदायिकवाद हो गए, घोर जातिवादी हो गए, घोर परिवारवादी हो गए। और दूसरा, गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं आए। वरना क्या कारण है कि 19वीं शताब्दी के कानून आज मुझे 21वीं शताब्दी में चेंज करने की नौबत आई, वो पहले होना चाहिए था मुझे। तो ये दुर्दशा रही। अब सवाल हमारे तीर्थ क्षेत्रों का सिर्फ नहीं है, भारत के, मुझे बताइए, दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या, कौन है? हमने नहीं किया था। इस देश का काम था, अगर मार्टिन लूथर किंग को दुनिया जानती है, अगर हमारे साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जी को दुनिया जानती है, गांधी जी से कम नहीं थी जी। और ये मानना पड़ेगा जी। मैं दुनिया में घूमने के बाद कह रहा हूं कि गांधी को और गांधी के माध्यम से भारत को तो तवज्जो मिलनी चाहिए थी। आज दुनिया की कई समस्याओं का समाधान में गांधी है जी, लेकिन हम गांधी को नहीं, तो हमने अपना बहुत कुछ खोया है। आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मैंने बनाया, दांडी, कभी कोई जाए, दांडी जो मैंने बनाया, दांडी जाकर के देखिए जी। मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के पंचतीर्थ बनाए, अब जाके देखिए। हमारे इतिहास को जीना चाहिए, हमने इतिहास से हमें जुड़े रहना चाहिए, उसमें सांस्कृतिक विरासत भी है। दूसरा, इस देश को गर्व के साथ दुनिया में ब्रांड करना चाहिए। 500 साल की लड़ाई थी, लेकिन जब अदालत ने जजमेंट दिया, ये देश के अंदर पूर्ण रूप से शांति रही। अब ये शांति कोई एक तरफा नहीं है, शांति के लिए उसके क्रेडिट सबको जाता है। हमने इसका ब्रांडिंग करना चाहिए, मार्केटिंग करना चाहिए था। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण सम्मान के साथ, पूर्ण गौरव के साथ की, तो आप कहते हैं विकास भी और विरासत भी। एक सवाल मेरे मन में है, 500 बरस का इंतजार खत्म हुआ, रामलला अपने स्थान पर विराजे और दिव्य भव्य राम मंदिर जो है वो बहुसंख्यकों की सहिष्णुता के प्रतीक के तौर पर हमारे सामने है। ये नियति है कि उसकी भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक सब कुछ आपके हाथों से संपन्न हुआ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस मौके पर जो विपक्ष ने एक दूरी बनाई, क्या आपको लगता है कि ये देश भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार को लेकर इस देश के विपक्ष की जो समझ सामने निकल कर आई है, इस चुनाव में उसका आकलन करेगा? एक है कि इन्होंने राजनीति के शॉर्टकट ढूंढे हैं और इसलिए वो वोट बैंक की राजनीति में फंस गए और वोट बैंक की राजनीति में फंसने के कारण वे लोग घोर सांप्रदायिकवाद हो गए, घोर जातिवादी हो गए, घोर परिवारवादी हो गए। और दूसरा, गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं आए। वरना क्या कारण है कि 19वीं शताब्दी के कानून आज मुझे 21वीं शताब्दी में चेंज करने की नौबत आई, वो पहले होना चाहिए था मुझे। तो ये दुर्दशा रही। अब सवाल हमारे तीर्थ क्षेत्रों का सिर्फ नहीं है, भारत के, मुझे बताइए, दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या, कौन है? हमने नहीं किया था। इस देश का काम था, अगर मार्टिन लूथर किंग को दुनिया जानती है, अगर हमारे साउथ अफ्रीका के
नेल्सन मंडेला जी को दुनिया जानती है, गांधी जी से कम नहीं थे जी। और ये मानना पड़ेगा जी, मैं दुनिया में घूमने के बाद कह रहा हूं कि गांधी को और गांधी के माध्यम से भारत को तो तवज्जो मिलनी चाहिए थी। आज दुनिया की कई समस्याओं का समाधान में गांधी है जी, लेकिन हम गांधी को ले तो हमने अपना बहुत कुछ खोया है। आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मैंने बनाया, दांडी कभी कोई जाए, दांडी जो मैंने बनाया, दांडी जाकर के देखिए जी, मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के पंचतीर्थ बनाए, अब जाके देखिए। हमारे इतिहास को जीना चाहिए, हमने इतिहास से हमने जुड़े रहना चाहिए, उसमें सांस्कृतिक विरासत भी है। दूसरा, इस देश को गर्व के साथ दुनिया में ब्रांड करना चाहिए। 500 साल की लड़ाई थी, लेकिन जब अदालत ने जजमेंट दिया, यह देश के अंदर पूर्ण रूप से शांति रही। अब ये शांति कोई एक तरफा नहीं है, शांति के लिए उसके क्रेडिट सबको जाता है। हमने इसका ब्रांडिंग करना चाहिए, मार्केटिंग करना चाहिए था। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण सम्मान के साथ, पूर्ण गौरव के साथ की, तो आप कहते हैं विकास भी और विरासत भी। एक सवाल मेरे मन में है, 500 बरस का इंतजार खत्म हुआ, रामलला अपने स्थान पर विराजे और दिव्य भव्य राम मंदिर जो है वो बहुसंख्यकों की सहिष्णुता के प्रतीक के तौर पर हमारे सामने है। ये नियति है कि उसके भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक सब कुछ आपके हाथों से संपन्न हुआ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस मौके पर जो विपक्ष ने एक दूरी बनाई, क्या आपको लगता है कि ये देश, भारतीय समाज, शाखाओं में जिनकी वर्ल्ड व्यू बनती है वो गांधी जी को नहीं समझ सकते, वो गोडसे को समझते हैं, गोडसे के रास्ते को अपनाते हैं। गांधी जी पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब लोग गांधी से इंस्पायर हुए। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग गांधी का रास्ता अपनाते हैं, अहिंसा और सत्य के रास्ते पे चलते हैं। लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में है, हिंसा और अहिंसा के बीच में है। हिंसा के लोग, असत्य के लोग ना अहिंसा को समझ सकते हैं। पूरे विपक्ष के जो सबसे उम्दा स्टार कैंपेनर हैं श्री नरेंद्र मोदी, आज उन्होंने फिर एक इंटरव्यू दिया कि अगर गांधी पर फिल्म नहीं बनती तो विश्व उन्हें नहीं जानता। ये वो गांधी है जो उनके मुंह से एक पंक्ति निकलती थी वो पूरे विश्व की अखबारों की सुर्खियां बनती थी। जब वो लंदन जाते थे तो वहां की गलियां और सड़क जाम हो जाती थी। ये वो महात्मा गांधी हैं जिनको नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग अपना प्रेरणा मानते थे। चार्ली चैपलिन और आइंस्टाइन उनको अपना आदर्श मानते थे। तो आप उस महात्मा गांधी के लिए कहते हो कि वो एक फिल्म का मोहताज था अपनी पहचान बनाने के लिए, तो अच्छी बात है कि आप प्रधानमंत्री लेट बने, जल्दी नहीं बन गए। नहीं तो हो सकता है आप बेन किंग्सले के स्टैच्यू पूरी दुनिया में लगाते फिरते। 100 देश के आसपास महात्मा गांधी के स्टैच्यू लगाए हुए। अगर अच्छे कर्म होना तो एक लंगोट और एक लाठी लेकर भी विश्व में पहचान बनाई जा सकती है। महंगे महंगे अपना नाम बनाए हुए सूट पहनकर शोबाजी करना, हवाबाजी करना, इससे नाम नहीं बनता। अपने भीतर गांधी को जिंदा रखने के लिए, जानने के लिए ये समझना जरूरी है कि हम सबके मन में गांधी और गोडसे का एक संघर्ष चल रहा हो। गांधी जीतते हैं, कभी कभी गोडसे जीतते हुए दिखते हैं, लेकिन अंततः जीत गांधी की होती है। जिस दिन आपके भीतर गोडसे हार जाएगा ना, उस दिन गांधी को आप भी समझ पाएंगे। अब आप रिटायर होने वाले हैं, आपके पास फिल्में देखने का बहुत समय होगा, जरूर देखिएगा। इतना जरूर बता दूं कि आपका अपना राजनीतिक कार्यकाल आपके कर्मों की वजह से, आपके विचारों की वजह से विश्व के इतिहास के कचरा पात्र में जाएगा। दैट्स द वर्थ ऑफ द लेगेसी। पिक्चरें देखिए, एंजॉय कीजिए। शाखाओं में जिनकी वर्ल्ड व्यू बनती है वो गांधी जी को नहीं समझ सकते, वो गोडसे को समझते हैं, गोडसे के रास्ते को अपनाते हैं। गांधी जी पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब लोग गांधी से इंस्पायर हुए। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग गांधी का रास्ता अपनाते हैं, अहिंसा और सत्य के रास्ते पे चलते हैं। लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में है, हिंसा और अहिंसा के बीच में है। हिंसा के लोग, असत्य के लोग ना अहिंसा को समझ सकते हैं। पूरे विपक्ष के जो सबसे उम्दा स्टार कैंपेनर हैं श्री नरेंद्र मोदी, आज उन्होंने फिर एक इंटरव्यू दिया कि अगर गांधी पर फिल्म नहीं बनती तो विश्व उन्हें नहीं जानता। ये वो गांधी है जो उनके मुंह से एक पंक्ति निकलती थी वो पूरे विश्व की अखबारों की सुर्खियां बनती थी। जब वो लंदन जाते थे तो वहां की गलियां और सड़क जाम हो जाती थी। ये वो महात्मा गांधी हैं जिनको नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग अपना प्रेरणा मानते थे। चार्ली चैपलिन और आइंस्टाइन उनको अपना आदर्श मानते थे।
आप उस महात्मा गांधी के लिए कहते हो कि वो एक फिल्म का मोहताज था अपनी पहचान बनाने के लिए, तो अच्छी बात है कि आप प्रधानमंत्री लेट बने, जल्दी नहीं बन गए। नहीं तो हो सकता है आप बेन किंग्सले के स्टैच्यू पूरी दुनिया में लगाते फिरते। 100 देश के आसपास महात्मा गांधी के स्टैच्यू लगाए हुए। अगर अच्छे कर्म होना तो एक लंगोट और एक लाठी लेकर भी विश्व में पहचान बनाई जा सकती है। महंगे महंगे अपना नाम बनाए हुए सूट पहनकर शोबाजी करना, हवाबाजी करना, इससे नाम नहीं बनता। अपने भीतर गांधी को जिंदा रखने के लिए, जानने के लिए ये समझना जरूरी है कि हम सबके मन में गांधी और गोडसे का एक संघर्ष चल रहा हो। गांधी जीतते हैं, कभी कभी गोडसे जीतते हुए दिखते हैं, लेकिन अंततः जीत गांधी की होती है। जिस दिन आपके भीतर गोडसे हार जाएगा ना, उस दिन गांधी को आप भी समझ पाएंगे। अब आप रिटायर होने वाले हैं, आपके पास फिल्में देखने का बहुत समय होगा, जरूर देखिएगा। इतना जरूर बता दूं कि आपका अपना राजनीतिक कार्यकाल आपके कर्मों की वजह से, आपके विचारों की वजह से विश्व के इतिहास के कचरा पात्र में जाएगा। दैट्स द वर्थ ऑफ द। आप कहते हैं विकास भी और विरासत भी। एक सवाल मेरे मन में है, 500 बरस का इंतजार खत्म हुआ, रामलला अपने स्थान पर विराजे और दिव्य भव्य राम मंदिर जो है वो बहुसंख्यकों की सहिष्णुता के प्रतीक के तौर पर हमारे सामने है। ये नियति है कि उसके भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक सब कुछ आपके हाथों से संपन्न हुआ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस मौके पर जो विपक्ष ने एक दूरी बनाई, क्या आपको लगता है कि ये देश भारतीय शाखाओं में जिनकी वर्ल्ड व्यू बनती है वो गांधी जी को नहीं समझ सकते, वो गोडसे को समझते हैं, गोडसे के रास्ते को अपनाते हैं। गांधी जी पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब लोग गांधी से इंस्पायर हुए। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग गांधी का रास्ता अपनाते हैं, अहिंसा और सत्य के रास्ते पे चलते हैं। लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में है, हिंसा और अहिंसा के बीच में है। हिंसा के लोग, असत्य के लोग ना अहिंसा को समझ सकते हैं। पूरे विपक्ष के जो सबसे उम्दा स्टार कैंपेनर हैं श्री नरेंद्र मोदी, आज उन्होंने फिर एक इंटरव्यू दिया कि अगर गांधी पर फिल्म नहीं बनती तो विश्व उन्हें नहीं जानता। ये वो गांधी है जो उनके मुंह से एक पंक्ति निकलती थी वो पूरे विश्व की अखबारों की सुर्खियां बनती थी। जब वो लंदन जाते थे तो वहां की गलियां और सड़क जाम हो जाती थी। ये वो महात्मा गांधी हैं जिनको नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग अपना